Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. 205 lectures which I have delivered centralizing the new syllabus of BA English Honors. Today, I shall discuss widely fourth chapter from Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay in English and Hindi. Chapter 4, the history of the rise and progress of a जमींदार family. अध्याय 4, एक जमींदार परिवार के उत्थान और प्रगति का इतिहास है. This chapter offers a satirical and ironic history of the rise of the Ghosh family, a prominent जमींदार lineage in Bengal. ये अध्याय बंगाल के एक प्रमुख जमींदार वंश घोष परिवार के उदय का व्यंग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण इतिहास प्रस्तुत करता है. It traces their origin to a humble servant, Bansi Badan Ghosh, who once worked for a childless old जमींदार. यह उसकी उत्पत्ति एक विनम्र सेवक बंसीवादन घोष से बताया है जो एक बार एक निसंतान बूढ़े जमींदार के लिए काम करता था. Upon the जमींदार second marriage to a beautiful young woman and the eventual death of his first wife, he sought to secure his young widow's financial independence. जमींदार की एक खूबसूरत युवती से दूसरी शादी और उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपनी युवा विधवा की वित्तीय स्वतंत्रता के सुरक्षित करने की कोशिश की. He began converting his landed property into cash and movable assets under her influence. When he died, the widow Karunamai became immensely wealthy. उसने अपने जमीन जायदाद को उसके प्रभाव में नकदी और चल संपत्ति में बदलाना शुरू कर दिया. जब उसकी मृत्यु हुई तो विधवा करुणामयी बहुत अमीर हो गई. करुणामयी shrewd and pragmatic chose to honor her late husband's memory not with a lifeless image but through companionship with a living man. She selected Bansi Badan, now promoted from a servant to confidant, to be both her consort and controller of her fortune. उसने बंसी बादन को चुना जो अब नौकर से विश्वास पात्र बन चुका था और उसे अपना जीवन साथी और अपनी किस्मत का नियंत्रण दोनों बना लिया. His quick rise from domestic servant to assistant manager was followed by a speciously convenient fever that killed the widow, leaving him sole beneficiary for her wealth. When the Jamidar's relatives arrived to claim their inheritance, they were stunned to find the estate neatly now empty, with Bansi Badan having already secured the riches. वो ले लिया था. जब जमींदार के रिश्तेदार अपने विरासत का दावा करने के लिए पहुंचे तो वे संपत्ति को बड़े करीने से खाली पाकर दंग रह गए, जबकि बंसी बादन ने पहले से ही संपत्ति को सुरक्षित कर ली थी. He recollected to Radhaganj and discreetly lived a comfortable life, eventually passing on his vast wealth to his three sons. The eldest, Ramakant, managed his estate with intelligence and austerity, ensuring its prosperity. सबसे बड़े रामाकांत ने अपनी संपत्ति का प्रबंध तपस्या के साथ किया जिससे उसकी समृद्धि सुरक्षित हुई. His son Mathur
continued this legacy trained in the art of manipulations and control. उनके बेटे माथुर ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने हेर फेर और नियंत्रण की कला में प्रशिक्षित किया गया। In contrast, the second son, Ram Kanai, was wasteful and easily misled. उसके विपरीत दूसरा बेटा राम कनाई फिजूल खर्च था और आसानी से गुमराह हो जाता था। अब देखिए, his ambition to rebuild his fortunes through risky mercantile ventures in Calcutta ended in ruin, manipulated by cunning advisors who drained his resources. This chapter sharply criticized the corrupt and opportunistic means by which some families rose to power, offering a biting commentary on social mobility, greed, and the abuse of influence masked by respectability. यह अध्याय भ्रष्ट और अवसरवादी तरीकों की तीखी आलोचना करता है, जिसके द्वारा कुछ परिवार सत्ता में आए तथा सामाजिक गतिशीलता, लालच और सम्मान के नाम पर प्रभाव के दुरुपयोग पर तीखे टिप्पणी करता है। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे किस तरह एक परिवार बर्बाद होता है। अब ये चैप्टर 4 में जो वर्ड्स आए हैं उसको मैं आप लोगों के सामने अभी एक एक करके बताऊंगा। आप अब कलम निकाल लीजिए, उसके बाद में किताब का चैप्टर 4 देखिए तो आपको ये वर्ड सब पता चल जाएंगे और इन्हीं वर्ड को आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला वर्ड देखिए, इट इज अ नोटोरियस फैक्ट। आपने सुना होगा नोटोरियस, लेकिन वो नोटोरियस आदमी है, लेकिन नोटोरियस फैक्ट नहीं सुना है। यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखते हैं नोटोरियस फैक्ट, यानी कि इनफेमस फैक्ट, जो फैक्ट जो है बहुत गंदगी से आदमियों को मालूम पड़ा था। नेक्स्ट, इनफेमस, नोटोरियस का मतलब इनफेमस। बंसी बादन लिव्ड एज ए मैनुअल सर्वेंट। यहां पर देखिए, बंसी बादन लिव्ड एज ए मैनुअल सर्वेंट। बंसी बादन का नाम आया है। मैनुअल सर्वेंट डोमेस्टिक सर्वेंट था। किस तरह वो जमीन हथियाया उसमें ही बात आया। अच्छा, डोमेस्टिक सर्वेंट था। फिर उसके बाद में एक वर्ड देखिए, फैमिली आर नाउ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है सीज टू एग्जिस्ट, माने पूरा खत्म हो गया। और दौलत किसके हाथ में आ गया? बंसी बादन के हाथ में। द अनफ्रूटफुलनेस ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज, अनफ्रूटफुलनेस, यूजलेसनेस, बेकार ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज। यहां पर अनफ्रूटफुलनेस का मतलब होता है बेकार, यूजलेसनेस। द नेक्स्ट वर्ड प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है जेनेरेशन, वंश, वंश परंपरा, उसको कहते हैं प्रोजेनी, जनरेशन। इट इज ट्रू इंडीड दैट डिस्टूडेंस एंड फ्रॉयल बिटवीन टू हेल्पमेट्स। यहां पर दो वर्ड है, देखिए, एक है डिस्टूडेंस और है फ्रॉयल। डिस्टूडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो मत पार्थक्य रखता हो। डिस्कडेंस का मतलब होता है, डिस्कडेंस का मतलब होता है पार्थक्य। ब्रोवल, वॉर, झगड़ा, यानी कि ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक फेलिसिटी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए यहां लिख रहे हैं डोमेस्टिक फेलिसिटी, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। डोमेस्टिक फेलिसिटी यानी कि हैप्पीनेस। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड जेंटलमैन ऑलवेज प्रिज्यूम टू डिस्प्यूट। यहां पर प्रिज्यूम टू डिस्प्यूट, प्रिज्यूम का मतलब होता है यहां इस जगह पर डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। अब बहुत ही बेहतरीन वर्ड आपके सामने आ रहा, द यंग मैन एंड हिज यूथफुल मेट
यहां पर देखिए यंग मैन एंड हिज यूथफुल मेट, यूथफुल मेट का माने होता है यंग वाइफ, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सिज यूथफुल मेट टू यू, तुम्हारे लिए वो एक यूथफुल मेट है यानी कि यंग वाइफ है। हर हैंड फीचर्ड बाय द लॉ, ये भी अच्छा वर्ड है, फीचर्ड बाय द लॉ, मेरा हाथ अभी किससे बंधा हुआ है? बाय द लॉ। यहां पर फीचर्ड बाय द लॉ का मतलब होता है बाउंड बाय द लॉ, मैं कुछ नहीं कर सकता। माई हैंड फीचर्ड बाय द लॉ, बाय द लॉ, ये फीचर का इस्तेमाल बाय द लॉ बहुत ही अच्छा है। देखते जाइए, फिर एक वर्ड देखिए, बेहतरीन वर्ड है, हिज ऑक्सोरियस जेल, ऑक्सोरियस जेल, ऑक्सोरियस जेल, फॉन्डनेस फॉर वाइफ। ऑक्सोरियस माने बहुत ज्यादा फॉन्डनेस, बहुत ज्यादा चाहना, जेल का मतलब होता है एकदम खूब जोर से चाहना। यहां पर जो है ऑक्सोरियस जेल, ये वर्ड को हम इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर करते नहीं है। दिस, नेक्स्ट देखिए, दिस फोर्टिफाइड बाय रीजन, फोर्टिफाइड, आपने 45 को बार बार सुनेंगे, घेरा डालना, 4 से 45 आप करते हैं ना, यहां पर 45 का स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, खूब जोर ताकत लगाना, फोर्स लगाना, फोर्टिफाइड बाय रीजन, रीजन का ताकत लगाना। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, एज हैड चिल्ड द फायर, एज हैज चिल्ड द फायर, यहां पर चिल्ड, चिल्ड का मतलब होता है टर्न कोल्ड, एकदम ठंडा हो जाना। एज हैज चिल्ड द फायर, अभी हम यंग हैं, जो यंग है उसका एज जब आएगा चिल्ड द फायर, जैसे हम लोगों को अभी चिल्ड द फायर यानी कि टर्न कोल्ड, हमको ठंडा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ही वेरी प्रूडेंटली मेड नो डिस्प्ले, ही वेरी प्रूडेंटली, यहां पर वर्ड प्रूडेंटली का इस्तेमाल किया है। प्रूडेंटली का मतलब होता है वाइजली, अकलबंदी से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ही वॉज इंडोलेंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट, यहां पर इंडोलेंट का मतलब होता है आइडल और एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, एक्सपेंसिव यानी कि खर्च करने वाला। यहां पर अगर देखा था आइडल एंड एक्सपेंसिव, ये माने रखता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेड ऑन हिज क्रेड्यूलिटी, क्रेड्यूलिटी, क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। ट्रूथफुलनेस, क्रेड्यूलिटी, क्रेड्यूलिटी, इसको याद करते जाइए, ट्रूथफुलनेस। नेक्स्ट देखिए, यूज टू फ्लीस हिम, फ्लीस, FLEEC, फ्लीस हिम, हम ये फ्लीस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बट इट इज वेरी वेरी, ये एक इतना अच्छा वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है कि हम उसको इस्तेमाल करें। फ्लीस हिम यानी कि चीट करना। ओके, नेक्स्ट, ही रेसाइडेड इन द मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस के इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं। मेट्रोपोलिस का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी, बहुत ही एक खास शहर। नेक्स्ट, हेमंगिनी इंसिसेंटली, हेमंगिनी इंसिसेंटली वेप्ट, हेमंगिनी इंसिसेंटली वेप्ट, इंसिसेंट कॉन्स्टेंटली, लगातार रोती रही। नेक्स्ट देखिए, ही बिसाउट मी, ही बेग्ड और एंट्रिएट, बेग्ड और इंट्रिएट, अनुरोध करना, बिसाउट मी, बिसाउट मैंने उसने मुझे अनुरोध किया, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, वी बेग्ड हिम, आस्क्ड फॉर हिम, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। वी प्रे, हम इस तरह से, हाँ, बिसाउट का मतलब होता है अनुरोध करना। नेक्स्ट, बहुत ही खूबसूरत वर्ड मैं आखिर में ले रहा हूं, ए ग्लूमी एंड वेक्स्ड कॉन्टिनेंस, ए ग्लूमी एंड वेक्स्ड कॉन्टिनेंस, इसका मतलब होता है डार्क एंड ट्रबल्ड अपीयरेंस, डार्क एंड ट्रबल्ड अपीयरेंस। अब देखिए, कोई आदमी अगर अभी बहुत ही मुसीबत में है और उसका चेहरा काला पड़ गया है, हम उसको कहते हैं कि ए ग्लूमी एंड वेक्स्ड कॉन्टिनेंस, डार्क एंड ट्रबल्ड अपीयरेंस। नाउ आप समझ में गए, जितने वर्ड्स में अभी दिया और जो वो लेक्चर दिया, आप उसको अच्छे से देखिए एंड फॉलो कीजिए। उसमें तो मैं सामने में लिख भी दिया हूं, आपको गलती होने का संभावना बहुत कम रहेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, अभी का अभी
आप अगर ग्रेजुएशन में हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब जितना पोएट्री है और जितना सेमेस्टर है सब इसमें आने वाला है। करिएगा ना। थैंक्स अ लॉट।